ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣਾ ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਣੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਚਿੰਤੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਸਦ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ ਬਹੁੜ ਨ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ
ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਚਰਣੇ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 623 ਅਤੇ 624 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜੇ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਖਵਾਉਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
एक तो शब्द उदों वरत्या जाता गुरपूरा है, उत्थे भावें गुरपूरा शब्द नहीं वरत्या जाता पर कहा जाता गुरु के चरनी लग गया। सहज पाठ शुरू कर दिता, गुरु के चरनी लग गया। पर गुरु के चरनी लगना सिर्फ की पाठ करना ही है। गुरु के चरनी लगना कि गुरु साहब जी को शरीरक तौर पर मत्था टेकना ही है। क्योंकि जो गुरु पूरा चरनी ला लवे तो फिर तो पहली गल किसी तरह की अंदर कामना रहिंदी नहीं, तो जे होवे भी वो पूरी होंदी है। तो जे साडे अंदर दे तृष्णा खत्म नहीं हुई, अंदर दियां कामनावां पूरियां नहीं होंदियां, एक तो बाद दूसरी, दूसरी तो बाद चार होर ने। और सानू गुरु के दर ते आउंदियां भी 50-50 साल हो गए। वैसे तो पाठ करन दा सिखां दे विच बहुत घट है, पर जेड़े गुरु के प्यारे करते हैं, जे 50 साल की उम्र हो सकता कि 50 तो वध पाठ भी सहज कर ले, तो इनका मतलब कि गुरु ने फिर चरनी ला लिया है। चरनी लगना सिर्फ इन्ना ही है कि पाठ कर ले या पाठ सुन ले। देखो ये गुरु के सिख वास्ते जरूरी है, और चरनी लग्या भी इस तरह जाना है। पर सिर्फ पाठ कर लैन दे नाल या सुन लैन दे नाल नहीं, फिर गुरु के चरनी लगना की है। जे 50-50 साल हो गए साढ़े अंदर तब्दीली नहीं आई, इनका मतलब असीं गुरु के चरनी लगे ही नहीं। और सतगुरु जी कहते हैं गुरु चरनी लाउंदे ने। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पावन वचन किया है कि गुरु तो इन्ना समर्थ है कि गुरु के सिखा जे तू गुरु के चरनी सचमुच लगना चाहुंदा है ना, एक कदम पट। और उस भावना के नाल पट, जेडे ढंग के नाल गुरु साहब जी कहते हैं, जिहड़ी भावना नाल गुरु साहब जी कहते हैं, उस ढंग के नाल कदम पट, तो मेरा पूरा गुरु तेनों करोड़ा कदम अगों दी लैण वास्ते आएगा। पर सवाल कई कर भी देंदे ने, कई कर सकते हैं कि भाई इन्ने साल हो गए, मैं तो सुनिया तू कदे नांगा भी नहीं पाया, गुरु घर में रोज़ ही जाना है, कि भैणे तेनों कदे गुरु नानक साहब जी अगों कदे लैण आया है। भरावा रोज़ जाना, गुरु गोबिंद सिंह साहब कदे अगों दी आए ने। देखो इतिहास में साखियां भावें से बहुत पढ़ लेने हैं। धन बाबा लैणा जी जदों पहली बारी धन गुरु नानक साहब जी के बारे सुनिया तो मिलने वास्ते गए। हुण साखी तो आप सारे जाननी है कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आप घोड़ी की लगाम फड़ के लै गए, तो जे बाबा लैणा जी नूं लै गए तो सानू लैण वास्ते आए। ये सवाल हो सकता ना कि लैण वास्ते आए, जे नहीं आए तो फिर सानू अपने अंदर किते ना किते झात मारनी चाहिए है। क्योंकि जो कुछ भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं वो तो सच कह रहे हैं, वो तो झूठ नहीं ना कहते जी। कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तो जे गुरु अगों नहीं लैण आए फिर घाट साडे विच है। गुरु अगों किवें लैण वास्ते आउण। धन गुरु ग्रंथ साहब ने साडे ते बड़ी किरपा की, आप ही सिख रूप होके सवाल किते और आप ही किते सिख रूप होके जवाब दिते। किते गुरु साहब जी ने गुरु रूप होके सानू उपदेश दिता, तो किते आप दीन बन के निमाणा सिख बन के अरदास की। हुण सतगुरु का एक पावन बचन है, जदों अंदरों कदम चलन की एक समझ आ जाए, या ये कह ले कि कदम को सचमुच चलना चाहता है पर समझ नहीं आती कि कदम चलना है कि, क्योंकि पैरों नाल चलते चलते तो बड़े साल हो गए। बाबा फरीद जी ने एक पावन बचन किया है कि पैरों नाल बड़े चले, इन्ने चले कि पैर भी थक गए, हुण पैरों ते वजन भी नहीं आउंदा।
हे रब जी, जे पैरां नाल चल चल के मैं थक गया, पैरां नाल चल के तू मिलिया नहीं, हुण मैं सिर परने हो के चला, फिर मिल जाएगा। और बाबा फरीद जी ने गल बिल्कुल ठीक कही, एक व्यंग दे विच कह दी। बाबा फरीद जी का एक पावन सलूक है, कहता तन ये जिहड़ा शरीर है, तन जलै तन बलै तंदूर ज्यों, बालन हड जलन तन तपै तंदूर ज्यों, बालन हड बलन। फिर अगे बचन जिहड़ा कीता, कहंदे पैरे थक्का सिर जुला, पैरां नाल चल चल के थक गया, जुलां दा अर्थ भाव चलना, सिर जुला हुण सिर भार हो के चला, जे मूँह पीरी मिलन जे रब मिल जे, हुण सिर भार हो के तो चलना ही पेगा। सतगुरु जी ने नाल ही श्लोक दे इहदी व्याख्या करके सानू समझाया कि जे तू चाहुंदा सचमुच गुरु चरनी लावे तो गुरु के चरणों तक तू पहुँचे, तो फिर सिर परने हो के ही चलना पेगा। पर सिर परने या पैरों के नाल चलना ये नहीं कि पैरों के नाल चल के आ गए या पैर उत्ते करके सिर थले करके चल पे। उत्थे गुरु साहब जी ने समझाया, कहते फरीदा तन न तपाए तनूर ज्यों, बालन हड न बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया। कि भाई पैरां ने या सिर ने तेरा थोड़ी कुछ बिगाड़े, इन्हों दुख क्यों देना है। जे रब दे दर ते जाना तो फिर इवें जाना पेगा, अंदर पिरी निहाल। सिर पर चलण का भाव ही अर्थ है कि अंदर वेख, अपने सिर नूं नीवा करके अंदर वेख, वो तो अंदर ही बैठा है। बस असल विच कदम ये जे चलना आ जाए, पर सतगुरु जी सानू तो चलना ही नहीं आया। और गुरु साहब जी ने पावन बचन कहे ने, कदम किवें चलना है। कहते इत मार्ग चले भाई अड़े, गुरसिख रूप हो के सतगुरु जी एक दूसरे गुरसिख नूं दस रहे हैं भाई किवें कदम चलना चाहिए है। कहते इत मार्ग चले भाई अड़े, किहड़े मार्ग ते किवें चलीए। उत्थे सतगुरु कहते ने गुर कहे साकार कमाए जियो, जो गुरु साहब जी कहते हैं बस वो कार कर। कार दा अर्थ कम, कार सेवा, असल विच वो काम जिंदे विच सेवा है। सेवा समझ के करना काम, काम नूं कार गया, काम वो कर जिहड़ा गुरु कहे। ते भरावा वो काम है किहड़ा, क्योंकि गुरु साहब तो कदे पुछया होवे तो समझ आए। फिर सतगुरु जी दस देने वो काम सब तो पहला ये है, एक कदम पटना की है। सतगुरु कहते ने त्यागै मन के मतड़ी, वो कदम असल विच ये है, मन की मत त्यागना सब तो पहला कदम है। और इसे नूं भाई साहब जी कहते ने एक कदम तो पट, बस अगों तो गुरु साहब जी ने आपे रस्ते विच पा लेना, आपे लैण वास्ते आ जाना है। पर है सब तो औखा। सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, मन के मत त्यागो हर जन। पर नाल ही अगे बचन कह दिते, यह बात कठैनी है सब तो औखी गल। बस इस औखे गल नूं जे तू कमा लवें, मन की मत छड्ड दे, तो गुरु के चरने तो जरूर पैगा, गुरु चरनी लाएगा, आप अगों लैण वास्ते आएगा। मन के मत त्यागो हर जन, तो इत्थे सतगुरु कहते ने त्यागे मन के मतड़े, विसारे दूजा भाऊ। हुण दूजा भाग की है, दूजा भाई वो है जिन्हों धन गुरु अर्जन देव जी 12 माह दे जदों आपां जाप करने हैं तो भादो के महीने में कहते हैं भादोए। भादोए का अर्थ ये है दो भा, भादोए भरम भुलाणिया, दूजे लगा हेत। बस दूजा पाई ये है कि जदों हेत दूजा लग जाए। खैर हुण सतगुरु जी ने कृपा करके सानू समझाया किवें चलीए।
इस रस्ते ते चलीए किवें। धन गुरु रामदास जी का पावन बचन है। अरदास बेनती करके पुछते हैं कि सतगुरु जी किवें चलीए, क्योंकि सानू ना तो रस्ते का पता है। किते रस्ता बंदा किते वेख्या होवे तो बड़ी सौखी पहुँच जाता है, पर जिहड़ा रस्ता वेख्या ही ना होवे और एक रस्ता ना वेख्या होवे दूजा अखां तों दिसदा भी ना होवे, किवें चलीए। सतगुरु का पावन बचन आपां हुक्मनामे दे विच कई बारी सरवण कीता है। हम अंधले अंध अन्निया दे अन्ने हो गए किवें। बिखै बिखराते, ये जहर रूपी पदार्थों को इकट्ठा करन करके इन्हां विच ही अन्ने हो गए। फिर अरदास कीते, पुछया क्यों चालै गुर चाली। फिर सतगुरु जी किवें चलीए। चलिया नहीं जाना, कृपा करके अपना पल्ला फड़ाओ। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चालै गुर चाली। सतगुरु दया करे सुखदाता, हम लावे आपन पाले। गुर पूरै चरणी लाया। बस कृपा करके जदों अपने चरणी लाते अपना पल्ला फड़ा ले। हुण बंदा चलिया बड़ा, जिथे बाबा फरीद जी ने पावन बचन कहे, सतगुरु जी ने बाणी दे विच बहुत थावां ते शब्द वरते ने कि बड़ा समा हो गया चलदा, तो बड़े दूर तो चल के आए। एक पावन बचन आप पढ़ते हैं, हों आया दूरों चल कै, मैं तके तो शरण आए जियो। बड़ी दूर तो चल के आया ते आस लैके आया कि सतगुरु जी तुसी चरनी लाउंदे हो तो तुहाडी चरनी लगण आया। तो जे पुछया किन्नी कु दूर तो चल के आया भाई, आपां ते कह देंगे किलोमीटर तो, 10 मील तो, 50 मील तो, 100-200 कोह तो चल के आ गया। पर सतगुरु जी कहते मैं तो बड़ी दूरों चल के आया। और किन्नी कु दूरों, जिथे सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने कि फिरत प्रभ आया, परया तो शरण आए। बड़िया थावां तो फिर के आया, हुण तेरी शरण तक के आया कि तुसी चरनी लाउंदे हो। तो पूछया किहड़ियां थावां तो। फिर सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी के पावन बचन ने आपां पढ़ने हैं कि ये 100-200 किलोमीटर नहीं, कहते कई जन्म हैवर बिरख जोयो, कई जन्म भय कीट पतंगा। ये तो जन्मां की खेड है कि पता नहीं कितों कितों हो के आया। और साडी हालत बिल्कुल कई बार इस तरह है, आए बड़े दूर तो चले बड़े। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक उदाहरण दी है। असल में एक पौड़ी दे विच 3 उदाहरण दी उन्होंने कि मनुख चलदा ते रहा, पर भुलेखा ये पै गया कि शायद पैरों नाल ही चलना है, जिन्होंने भाई साहब जी कहते हैं एक कदम पट गुरु साहब जी करोड़ा कदम अगों लैण आउणगे। कहते चलदा तो बलद भी है। और उदाहरण भी दी उस तेली दे बलद दी कि आप जी जानते हो तेली दे बलद अगे जदों कोलू दे अगे उन्होंने जोना, तो बहुतियां दे कोल हुंदे सन चमड़े दे खोपे, अखां दे अगे बन्नदे ने, जे ना होण ते कपड़े बन दिंदे सन। 1-2 चक्कर उनके पिछे पिछे चलना, नाले बोल के पिछों माड़ी जी सोटी भी ला देनी। बस 1-2 चक्कर ही चलते सन, उन्होंने लगता सी कि मालक पिछे पिछे है। बलद नूं लगता सी कि सवेर तो लैके शाम तक चलिया तो पता नहीं किन्ने को दूर आगे होगा। हुण चलिया तो है ही, इहदे च तो शक कोई नहीं। चल आप भी रहे हैं और आप भी ये कह लिए कि जन्म तो लैके मरण तक चलते रहे, पर चले उवें जिवें तेली का बलद चलिया। बस दुनिया के चक्करों में घूमते रहे, समझ नहीं लगे कि जाना कित्थे है, मंजिल केड़ी है। गुरु साहब तो पूछे ही नहीं कि देही मिली कह दे, भावें पढ़ रोज लिया, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया।
ਹੁਣ ਤੇਲੇ ਦਾ ਬਲਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੂਹ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਲਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਲਦ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਸ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਤੇਲੇ ਕੋ ਬੈਲ ਜਾਣਤ ਕਈ, ਕੋਸ ਚੱਲਿਓ ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਈ ਠਾਓ ਹੀ ਟਿਕਾਣੂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਣ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਸਾ ਵੱਟਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧੜ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ 1.5 ਹੱਥ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਤ ਰੁਕ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਕੁ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਈ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਸੇ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਲ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਧੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਤਿਉ ਤਨ ਤਿਆਗਤ ਹੈ ਸੁਣ ਰੇ ਜੜ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਖਾਨ ਤ੍ਰਿਐ ਭਜ ਜੈ ਹੈ, ਭੌਣ ਭੰਡਾਰ ਭਰਾ ਗੜ ਜੇਤਕ, ਛਾੜਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬੇਗਾਨ ਕਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸਖਾ, ਬੇਗ ਨਿਕਾਰੋ ਆਇਸ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ। ਰੱਸੇ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜੇਵਰੇ ਬੰਧਤ ਅੰਦਰੋ ਅਚਿੰਤ ਚਿੱਤ, ਖਾਤ ਜਾਤ ਬਸ਼ਰੋ ਟਟੋਰੋ ਪਛਤਾਨੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਧਾਵੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਆਵਤ ਨ ਸ਼ਾਤ ਭਰਮ ਭਰਮਤ ਹੈਰਾਨੋ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਪਿਆਸ ਉਸ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ
नहीं को राजै। उत्थे भाई साहब ने उदाहरणा दे के फिर गुरमत का उपदेश दिता कि गुरु के सिक्खा गुरु के चरनी लगना है तो फिर अपनी मंजिल मिथ एक कदम पट। भाई साहब जी कहते ने जैसे मृग तृष्णा नूं धावे मृग त्रिखावंत, आवत न शात परम परमत हरानो है, तैसे ही सुपनंतर दिसंतर बहाए गए, पहुँच न साकियो जहाँ मोहे जानो है। पहुँचना कि सानू मंजिल नहीं पता लग्या, एक कदम ही नहीं पटिया। भाई साहब जी कहते ने एक कदम पट, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। तू एक कदम पट गुरु चरनी लाएगा, तो जो गुरु चरणन ना ला लवे फिर सतगुरु जी कहते ने हर संग सहाय पाया, क्योंकि गुरु के चरनी लग्या होया फिर गुरु तो विछड़ा कदे नहीं। सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने मिलिया होए ना विछड़े। जे मेला हुई एक बार मिल जाए मिलिया होया फिर विछड़दा थोड़ी है, फिर वो जिथे जाता उथे सौखा, क्योंकि पता है गुरु मेरे नाल है, गुर पूरे ने मैनू अपने चरनी लाया है। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हुण पूरे गुरु ने चरनी लाया, जिथे जाइए उथे सौखे रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कृपा की ऐसा गुरु मिला दिता। तो जाए ये कह दे गुरु ने कृपा की अंदर बैठा होया परमेश्वर मिला दिता। हुण सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा गुरु ऐसा समर्थ है, हर थां ते सुख देने वाला जेड़ा परमेश्वर है, भाई फिर उनके गुणां नूं गा। रहाऊ दी पंक्ति च कहते हैं हर गुण गावो सदा सुभाई, भावना दे नाल प्रेम दे नाल उनके गुणां नूं गा, जेड़ा प्राणा दा आधार है। हर गुण गावो सहज सुभाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जी कै संग सहाई। क्योंकि वो केवल चरनी नहीं लाया, मन के सारे मनोरथ पूरे नहीं किए, वो हर वेले साडी सहायता भी करता है। जी कै संग सहाई, केवल जिंदियां जी नहीं, वो शरीर छड्डण तो बाद भी साडा सहायक है। भाई फिर उनके गुणां नूं गा। रहाओ नारायण प्राण आधारा। हुण जदों गुर पूरे ने चरनी ला लिया, ये समझ आ गई, अंदर दी अवस्था बन गई कि वो नारायण, वो परिपूर्ण परमात्मा साडे प्राणां दा आधार है। तो उस परमेश्वर के चरणों में अरदास करके कहे हम संत जना रे नारा, कि हे सतगुरु जी असी संत जना के चरणों की धूड़ बन जाइए। रे नारा दा अर्थ चरणों की धूड़, क्योंकि चरणों की धूड़ में इन्नी बरकत है। और फिर बेनती करते चरणों की धूड़ का भाव अर्थ निमरता, जपण वालियां दी संगत करके उन्हां दे चरणों की धूड़ तो भाव है उन्हां नूं मिल के, उन्हां दे नाल मिल के साडे अंदर भी निमरता आ जाए। तो जदों निमरता आ गई फिर सतगुरु जी कहते हैं पतित पुनीत कर लीने। मेरे गुरु ने सानू पतितां नूं पवित्र कर लिया। कर कृपा हर जस देने, क्योंकि अपनी कृपा करके हरि दा जस सानू दे दिता। जपण वाले की संगत करके वो हरि दा जस सानू जपना आ गया। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला, सद जी संग रखवाला। हुण सतगुरु जी कहते ने पूरे गुरु के चरनी पै के जदों गुरु ने चरनी लाया, ये भरोसा हो गया कि वो पार ब्रह्म परमेश्वर मेरी भी प्रतिपालना करता है। और इत्थों लख जिहड़े 84 लख जूना बनाइया ने हर एक जीव की प्रतिपालना करता है। तो कल्ली प्रतिपालना नहीं, कहते सद जी संग रखवाला, सदा ही साडी जिंद का वो रखवाला भी है। हर दिन रैन कीर्तन गाइए, इस करके सतगुरु कहते हैं भाई हर दिन रैन, दिन रात पावर्थ के हर वेले उनके कीर्तन गाइए। और फिर बेनती करते कीर्तन केवल हारमोनीयम नाल गाया नहीं जाता,
कीर्तन का अर्थ कीर्ति, ते कीर्ति भी गाइए का अर्थ दिन रैन हर वेले, ये बोल बोल के गाई नहीं जा सकती। इस कीर्ति नूं गुरु साहब जी सिमरन कहते हैं। तो सिमरन वो है जिहड़ा चेते विच वस जे, और सिमरन वो है जिवें सानू धी का सिमरन है, पुत्र का सिमरन है, ये कदे भुलदे थोड़ी ने। रिश्तेदारों के नाम सारे चेते रहिंदे ने, बस चेते रखना सिमरन, दिन रैन उनके कीर्तन नूं गाइए, उन्होंने चेते विच रखीए। तो फिर सतगुरु जी होएगा कि कहते बहुड़ न जोनी पाइए, जन्म मरण के चक्रां तो खैड़ा छुट जाएगा। और अखीर ते सतगुरु जी ने बख्शिश की, ये परमात्मा के नाम के कीर्तन के उनके सिमरन की इन्नी बरकत है। पर नाल ही कहते हैं जिस देवै पुरख विधाता, ये सिमरन के दात कीर्तन के दात जिन्हों वो पुरख विधाता आप बख्शे। कहते हर रस तिन ही जाता, हरि दे परमात्मा के नाम का रस उन्हें ही जाने, जाता का अर्थ जाने, ये रस आया उन्होंने। तो जिन्होंने ये रस आ गया कहते ने जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक शरणी पाया। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते ने अपने गुरु के चरणी पै के उन्होंने वो सुख पाया है कि जम कंकर जिन्होंने लोग धर्मराज के दूत कहते हैं, वो भी नेड़े नहीं होंगे, वो भी टुकते नहीं। सतगुरु जी कृपा करन। ये सतगुरु ने सब दे लिए कृपा की, सब नूं कह के गुरपूरे चरणी लाया, जेड़ा भी आया उन्होंने चरणी ला लिया। और फिर बेनती करदा क्योंकि सानू आउणा ही नहीं आया, असी जे आए तो सिर्फ शरीर करके आए, ये बाहरले कदम चल के आए। जिदन अंदरला कदम एक भी चल के आ गए तो भाई साहब जी कहते हैं सच जाणिओ, फिर बहुता चलण की लोड़ पैनी भी नहीं, क्योंकि गुरु ने आपे आके ले जाना है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतगुरु जी कृपा करन, बस वो एक कदम सानू चलना अजे हुईयां फुल्लां दी खिमा। आओ एक दो मिनट रसना करिए पवित्र, फिर समाप्ति है जी। वाहे गुरु वाहे गुरु